Hey friends, I welcome you all in my channel Decode the Law. From now and onwards, I am going to start a CRPC lecture series. मतलब जब तक CRPC ख़त्म नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज कंटिन्यू होता रहेगा एंड आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रोविजन इन अ ग्रेट डिटेल. अगर आप जुडिशरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और एनी लॉ एग्ज़ाम और अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो कोर्ट में तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा. मैं आपको ये भी बताऊंगी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में एंड प्रीलिम्स में, कौन कौन सा सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. So friends, in this video we will understand that what is CRPC, why CRPC is here and is it necessary for our nation. And in this video we will try to find the answer of these questions. Okay, so before going into the main thing, that is the CRPC, we need to know what is the procedural law and substantive law. If we look at the broader classification of the law, then we will find that procedural law and substantive law are the two major or broad categories within the domain of law. So, substantive law is something which actually defines the law along with the punishment. Suppose एक इंसान ने थेफ्ट कमिट किया है, मतलब थेफ्ट का जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, थेफ्ट करने पर क्या पनिशमेंट मिलता है, वो सब कुछ चीज़ जानने की ज़रूरत है. हम लोगों को इन सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? आईपीसी से मिलेगा, क्योंकि आईपीसी डिफाइन करता है इन सारी चीज़ों को. सो आईपीसी क्या हुआ? आईपीसी एक सब्सटैंटिव लॉ हुआ, राइट? सो आईपीसी एक्चुअली डिफाइंस द ईच एंड एवरी ऑफेंसेस एंड व्हाट आर इट्स इंग्रेडिएंट्स एंड ऑन कमीशन ऑफ दोज व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट यू विल बी अवॉर्डेड. So these are the things that has been stated in the substantive law. And similarly, food adulteration, dowry prohibition, then protection of civil rights, these are the examples of substantive law. I am again repeating, it only states about the essential ingredients of a particular offense, like theft, robbery, rape, lurking house trespass, bigamy, extortion, adultery. These are the offenses. Okay. So now let's move to procedural law. So what is procedural law? Procedural law actually it provides a mechanism. So it basically a process through which a case proceeds. It is the administrative mechanism and mechanical part of the law. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, लॉ ऑफ लिमिटेशन, Court Fees Act and Suit Valuation Act. These are the examples of procedural law. Now मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगी कि प्रोसीड्यूरल लॉ एक्चुअली होता क्या है इन अ सिंपल लैंग्वेज. समझ लो एक कार है, ठीक है, वो कार बैटरी से चलता है, मतलब वो कार एक बैटरी ऑपरेटिव कार है. सपोज आप वो बैटरी को उस कार से निकाल लेते हो, क्या वो कार चल पाएगा? नो. The answer is no, because battery is the sole mechanical part of that particular car, right? So that's why अगर वो बैटरी आप निकाल लो तो वो कार कैसे चल पाएगा? Similarly, the CRPC procedural law are those laws which actually acts like that particular battery, and the body of the car is similar to that of the substantive law. So कार का जो body है वो एक substantive law है, ठीक है, और जो बैटरी है वो एक प्रोसीड्यूरल पार्ट है. अगर वही नहीं रहेगा तो गाड़ी कैसे चल पाएगा, ठीक है. सो दीज आर द सिंपल थिंग. पता है नहीं इसके सिंपल में और क्या ही समझा पाऊँ आपको, ठीक है. सो नाउ लेट्स कम टू दी सीआरपीसी. एक्चुअली क्या है? सीआरपीसी एक प्रोसीड्यूरल लॉ है, ठीक है. तो सीआरपीसी हम लोगों को एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता है और मैकेनिज्म प्रिस्क्राइब करता है, वो फॉलो करके लॉ ब्रेकर्स को पनिशमेंट दिलवाया जाता है. So basically, in order to protect our society against criminals and lawbreakers, we have to have a law which will punish the offender, right? So in order to punish those offenders, हम लोगों का एक procedural law रहना बनता है, and that procedural law is CRPC. Okay, so basically the substantive criminal law actually defines the offenses, and procedural law actually prescribes the procedure or administrative process through which a case proceeds. So this is the basic thing about procedural law and substantive law. So
in our country, CRPC is the biggest procedural code in terms of conducting the criminal cases. मतलब in our country, CRPC सबसे बड़ा criminal procedure code है क्रिमिनल ट्रायल्स को कंडक्ट करने के लिए, विदाउट विच द कोर्ट इज एब्सोल्युटली इनकेपेबल ऑफ कंडक्टिंग द क्रिमिनल ट्रायल्स. That's why the CRPC is here, and that's why it is very important for our nation. Now let's come to the case law, that is Commissioner of Wealth Tax Meerut versus Sarvan Kumar Sarup एंड सन्स. 1994 का एक सुप्रीम कोर्ट का केस है. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड्यूरल लॉ एंड सब्सटेंटिव लॉ के बीच में जो डिफरेंस है वो बताया था. मतलब प्रोसीड्यूरल लॉ क्या करता है, वो किसी इंसान का राइट्स, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सारे चीज़ों को ना बोलता है. मतलब एक इंसान का ड्यूटी क्या है, राइट्स क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इन सारे चीज़ों को बताता है. बट प्रोसीड्यूरल लॉ क्या करता है, उन सारे चीज़ों को, उन सारे राइट्स को एक्सरसाइज और इन्फोर्स करने की बात करता है. सो प्रोसीड्यूरल लॉ एक्चुअली हेल्प्स टू इन्फोर्स दोज राइट्स, ड्यूटीज़ and responsibilities. So procedural law is a mechanism by which it administers the substantive law. Now let's come to the object of the CRPC. The main object is to provide mechanism for the enforcement of criminal law. It meant to be complementary to the criminal law. Criminal law को एक तरीके से complement करता है. Now suppose a person commits the offense of theft that has been defined in IPC. Now suppose IPC में define तो किया गया है, थेफ्ट करने पर क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, थेफ्ट का क्या इंग्रेडिएंट है, सब कुछ डिफाइंड है. सिर्फ डिफाइन करने से क्या काम चल जाएगा? नहीं चलेगा. सो थेफ्ट जो इंसान ने की है, मतलब जो इंसान ने थेफ्ट कमिट की है, उस इंसान को पनिशमेंट दिलवाना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. और यहाँ पे कैसे पनिशमेंट दिलवाया जाएगा उसका एक प्रोसेस है, एंड दैट हैज़ बीन डिफाइंड इन सीआरपीसी. जानते हैं ना, जब ऑफेंस कोई कमिट होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेट करता है, then arrest such person, then will search that but seizure the weapons, then magistrate will take the cognizance that has been defined in section 190 of the CRPC. We will deal with this provision later on, and jurisdictional aspect, trial, bail and appeals, etc. So these are the steps of the criminal proceedings, right? नाउ वो इंसान जो ऑफेंस किया है उसको पनिश करने के लिए इन सारे स्टेज जो बताया गया है, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, अरेस्ट, these are the things very important to bring the person behind the bars. Now let's understand the brief history of CRPC. मतलब CRPC का ओरिजिन कहाँ से हुआ? CRPC एक्चुअली पास हुआ था ब्रिटिश इंडिया में. ठीक है, ब्रिटिश रूलर्स एक रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास किए थे, एंड इस एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में. ठीक है, मतलब एट दैट टाइम ब्रिटिश प्रोसीजर लॉ फॉलो किया जाता था इन डिसाइडिंग द केस, जो क्राउन्स के रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर थे, डिस्प्यूट थे, वो सारा चीज़ सॉल्व करने के लिए. बट लेटर ऑन देयर वॉज अ रिबिलियन ऑफ 1857. तब Crown was took over by the administration in India, and then CRPC was also created for the first time in 1882. Then it was amended in 1898, then according to the 41st Law Commission Report 1973, and it has came into an existence from the 1st April 1994. आई होप आपको समझ में आ गया है कि CRPC क्या है, CRPC का हिस्ट्री क्या है. नाउ हम लोग देखेंगे सबसेक्शन 1 इसका क्या बताता है. अगर आप बिहार एक्ट खोले तो आपको कुछ ऐसे तरीके से एक पेज देखने को मिल जाएगा, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट ऑफ 2 of 1947 and 25th January 1974. Section 1 of the CRPC actually states about the short title, extent and commencement of that act. मतलब CRPC का शॉर्ट टाइटल वो कहाँ तक एक्सटेंड किया जाएगा एंड कमेंसमेंट हुई कब, इन सारे चीज़ों के बारे में. तो CRPC मतलब इस एक्ट को क्या बोला जाएगा? The Code of Criminal Procedure 1973, and subsection 2 states that it extends to the whole of India except the state of Jammu and Kashmir. But अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि आर्टिकल 370 रिपील हो चुका है, और रिपील हो जाने के बाद इस क्लॉज का कोई वैल्यू नहीं रहा, एंड ये होल ऑफ द इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर CRPC लागू होगा. नाउ देयर आर 3 chapters, that is chapter 8, chapter 10 and chapter 11. इन तीनों चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज, बट द गवर्नमेंट कंसर्न ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन
or any of them to the whole or part of the Nagaland or such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental, or consequential modifications as may be specified in the notification. मतलब गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया कोई सप्लीमेंट इंसिडेंटल चेंजेस और कंसिक्वेंटल मॉडिफिकेशन करके एप्लीकेबल कर सकता है लॉ को नागालैंड की कोई भी पार्ट में और होल ऑफ द नागालैंड and that must be mentioned in the notification. One actually states about the tribal area. So tribal area मतलब क्या है? Tribal area मतलब before 21st January 1972 जो सारा एरिया वो असम में इंक्लूड हो चुका है in the reference to the paragraph 20 and 6th schedule of the Indian Constitution other than those within the local limits of the municipality of Shillong. इन सारे एरियाज को ट्राइबल एरिया माना जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे के वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी डेफिनेशन क्या है बे लेवल ऑफेंस, नॉन बे लेवल ऑफेंस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वारंट केस, समॉन्स केस एंड कंप्लेंट। इन सारे चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।